Hello students. Now the our topic on today is refraction in prism. Refraction in prism. So on today I will tell you how will travel the ray of the light when the ray of light enters in the prism. So you are seeing this is a prism here, okay, and now you are seeing its base is triangular type. You are seeing here, and you are seeing also it is just like as a equilateral triangle, and it has two faces, one faces and two faces. ये दो फेसेस के हैं और इसके जो दूसरा फेसेस हैं 1, 2 and 3 ये आपके स्क्वायर टाइप के हैं, क्वाड्रेटर टाइप का है. So you are seeing very clearly this is a glass prism, and now we will trace the path of the ray of the light through a glass prism, and your objective is also to study the refraction of the light falling on glass prism. Okay students, so now before starting our experiments, so first we study about its basic concept of the prism, its basic concept, how travel the ray of the light through glass prism. Okay students, so now I am telling you and suppose I am drawing the triangular face of it just like as this. Yeah, its base is triangle just like as this. This is a triangle. Okay students, and now suppose that a ray of light enters in this type, ये और जैसे इंटर करेगी ये इट्स बेंड्स, ये बेंड करेगी इस टाइप से. थोड़ी बेंड होगी और उसके बाद इसको हम लोग कहेंगे इंसिडेंट रे. सपोज दैट दिस इज P and Q, point P and Q, and suppose that this is R, and it is also called the incident ray, and this is refracted ray. And again जब ये फिर से अपने सेम मीडियम में आएगी तो फिर से अपने पाथ को चेंज करेगी इस टाइप से. Okay students, so this is called the incident ray. Or you can also say that PQ is equal to PQ
is incident ray. And QR, refracted ray. And suppose that this is S and RS is emergent ray. Okay students, if we draw a perpendicular line on it, suppose that I am drawing a perpendicular line on it. So this is called the angle of incidence I. I stands for angle of incidence. I stands for angle of incidence. And again, if you draw a perpendicular line on it, we find that this is denoted by the E, and E stands for the angle of emergence. Angle of emergence. Okay students, you are seeing very clearly here. And now angle of emergence E. Now this angle is called the R1, and R1 is the angle of incidence inside the prism, angle of refraction. Angle of refraction. R1 is the angle of refraction. And this is R2. And R2 is the angle of incidence inside the prism. Angle of incidence inside the prism. Okay students, so this is the most important things that कि यहाँ पर कौन कौन से angles हैं. So you are seeing that PQ is the angle incident ray, and Q, and suppose that QR, this is the point QR. QR is the refracted ray, and RS is the emergent ray. Angle I, this is angle I, and angle I is the angle of incidence. E is the angle of emergence. R1 angle of refraction. R1 is the angle of refraction, and R2 is the angle of incidence inside the prism. And now this is the angle A. Two faces जो भी होते हैं यहाँ पर, जो भी फेस लेते हैं, और they intersect point A. So A is the angle of prism. A is equal to angle of prism. और जनरली ये 60 डिग्री होता है, बिकॉज ये इसके जो फेसेस होते हैं वो फेसेस इक्वेटर ट्रायंगल अगर है तो यू नो कि ईच एंगल इज 60 डिग्री, सो यू कैन आल्सो एक्सेप्ट दैट एंगल इज 60 डिग्री. बट मे बी मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम हो सकता है कि थोड़ा सा कम हो ज़्यादा भी हो सकता है, बट अमूमन ये 60 डिग्री हो सकते हैं ये. सो दिस इज द बेसिक थिंग्स. नाउ if we produce the PQ here, suppose that I am produce the PQ and RS
एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। सपोज दैट मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ और इसको ये हो गया और इसके बाद ये हो गया, यानी कि इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे इंटरसेक्ट एट द पॉइंट। सपोज दैट RST, सपोज दैट T पर इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस इज द पॉइंट T, सो T is denoted by a D and D is the angle of deviation. D, angle D shows for angle of deviation. एंगल ऑफ डेविएशन, तो एंगल ऑफ डेविएशन हमको यहाँ पर भी ट्रेस करना है। हम अपने एक्सपेरिमेंट में इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हाउ विल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट I will tell you in the next video. But what is the angle of deviation? The incident ray and emergent ray intersect at the point. Then we measure this angle, and this is called the angle of deviations. But angle of deviation is depend on the incident ray. Angle of incident. Angle of incident में आप ये भी कह सकते हैं कि जब हम में भी की इंक्रीज करेंगे डिक्रीज करेंगे तो ये भी इसका इफेक्ट यहाँ पर पड़ेगा और एंगल ऑफ फ्रीज पर भी इफेक्ट पड़ेगा। तो आई एम टेलिंग यू दैट आई एंगल डी डिपेंड ऑन द आई को हम लोग चेंज कर सकते हैं। आई जैसे जैसे चेंज होगा, मे बी कि कभी कभी आई को इंक्रीज करते हैं तो डी डिक्रीज होता है और फिर एक समय के बाद फिर इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कह सकते हैं कि आई हमेशा इंक्रीज करने पर डी डिक्रीज ही होगा या इंक्रीज ही होगा। एक मिनिमम वैल्यू तक डिक्रीज होता है और उसके बाद फिर इंक्रीज होता है। इसको थोड़ा सा हमें ध्यान देने की यहाँ जरूरत होगी एंगल ऑफ डेविएशंस को कि, और उसके लिए हम आई और डी का है ग्राफ भी प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने पर आपको कुछ इस टाइप से ग्राफ मिलेगा। आई को इंक्रीज करेंगे तो डी भी डिक्रीज होगा। आई सपोज दैट ये ग्राफ मैं साइड में बना रहा हूँ ये, और इस ग्राफ को सपोज दैट ये ग्राफ है और आई मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये आई हुआ और ये डी हुआ। जैसे जैसे आई को इंक्रीज करेंगे ये डिक्रीज होता चला जाएगा और एक समय बाद फिर ऐसे इंक्रीज हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एक वैल्यू आएगी जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एक वैल्यू मिलेगी जहां पर हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन। तो मे बी कि हम एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन किसी भी एंगल पर भी हो सकता है। एंगल आई सपोज 30 ले रहे हैं तो 35 ले लिए, फिर 40 ले लिए, फिर 45 ले लिए। तो सपोज 30 लेंगे 35 लेंगे तो हो सकता है कि ये डेविएशन डिक्रीज होगा और फिर जैसे जैसे आई को इंक्रीज करते जाएंगे डिक्रीज होते होते फिर एक समय ऐसा आएगा कि आई को इंक्रीज करेंगे तो फिर डेविएशन भी इंक्रीज हो जाएगा, एक आपका पैराबोलिक शेप में आ जाएगा। तो इस कंडीशंस में हम लोग कह सकते हैं जब एक मिनिमम पॉइंट पर जब आकर के इंक्रीज होता है और वो मिनिमम पॉइंट क्या कहेंगे एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन एंड डिनोट बाय द डीएम या फिर सिग्मा एम से डिनोट कर सकते हैं। कहीं कहीं पर सिग्मा एम भी है आपके बुक में, कहीं कहीं पर में भी कि आप शो कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये आपका ये बहुत ज़रूरी है इसको करने एंगल ऑफ डेविएशन को समझने के लिए। तो आइए देखते हैं कुछ रिलेशंस देख लेते हैं इस पर क्या इसका रिलेशन है एंगल ऑफ प्रिज्म का और R1 एंड R2 का, R1 एंड R2 का। थोड़ा सा इसको मैं यहाँ पे रिमूव करता हूँ। So I am telling you that angle A is equal to
R1 प्लस R2। यानी कि जब आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करेंगे तो आपको एक एक्सपेरिमेंट सही है गलत है इसको चेक करने के लिए आप एंगल ऑफ प्रिज्म जो भी होगा R1 और R2 दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द प्रिज्म, इन दोनों का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के इक्वल होना चाहिए। अगर ये इक्वल है इट मीन्स कि आवर एक्सपेरिमेंट इज करेक्ट। और अगर थोड़ा बहुत डिफरेंट में भी डिफरेंट हो सकता है का डिग्री का, तो वो भी हम लोग उसको समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग को ट्रेस करने पे एग्जैक्टली हम लोग वहाँ तक 100% ट्रेस करने में रिजल्ट ना आ सकता है, लेकिन अगर कुछ फ्यू परसेंटेज एरर भी है तो इट्स नो प्रॉब्लम। और सेकेंड थिंग्स D प्लस A एंगल ऑफ डेविएशन प्लस एंगल ऑफ प्रिज्म दैट इज इक्वल टू I प्लस E। I और E के इक्वल हो, I और E अगर इन दोनों का सम डेविएशन और एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन देयर सम इज इक्वल टू एंगल I प्लस एंगल E। अगर ये चीज़ें आ रही हैं तो इसका मतलब कि हमारा एक्सपेरिमेंट क्लियर है। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग एक्सपेरिमेंट को करके परफॉर्म करके शो करेंगे कि कैसे हमारा हम इसको कैसे ट्रेस आउट करेंगे। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं इसको और नेक्स्ट टाइम से इसको और क्लियर कर देते हैं, बट एक आपको इसका एक फॉर्मूला भी आप बता देते हैं कि सपोज दैट इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, इसका क्या निकालना हो, सपोज दैट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इसका प्रिज्म का, तो इसका एक फॉर्मूला है n इज इक्वल टू refractive index n equal to refractive index n is equal to sin A plus dm upon 2 sin A प्लस DM क्या एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस अपॉन 2, मतलब कि कई एंगल लेंगे, I कई एंगल लेंगे और मिनिमम एंगल जो आएगा दैट इज एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस अपॉन 2 अपॉन साइन A अपॉन 2। इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके स्टूडेंट्स, सो इसके लिए अगर आपको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो फर्स्ट यू विल मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको कैसे मेजरमेंट करेंगे, यू विल पुट दिस प्रिज्म ऑन द पेपर एंड यू ड्रॉ द बाउंड्री एंड यू विल मेजर द एंगल ऑफ प्रिज्म थ्रू द प्रोटेक्टर by protector, and then that is A, and angle of deviation minimum deviation means you will take the different angle of incidence and you will trace out the ray of light through glass prism different angles, suppose 35 40 45 50। तो देखेंगे कि एंगल ऑफ डेविएशन कुछ आता जाएगा, तो ये तो इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, तो एक समय ऐसा एक वैल्यू पर ऐसे ही आएगी जहाँ पर सबसे कम वैल्यू होगी, दैट इज द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशंस। और उस मिनिमम डेविएशंस को हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, इस फॉर्मूले पर वैल्यू पुटअप करके इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाल सकते हैं। तो इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू हाउ विल यू ट्रेस द पाथ ऑफ द रे ऑफ द लाइट थ्रू glass prism. Okay students, and